Students, today we'll discuss the topic that is the physical properties of amines, and in this topic we'll discuss three main properties: intermolecular forces, boiling point, and solubility. So I'll start with the first property, that is intermolecular forces. So students, you know that in amines there is NH bond, clear to all of you, and this NH bond is have the capability of formation of hydrogen bond. If I'll give you the example, this is C out, CH3 NH2 methylamine, this is delta positive, delta negative. Now CH3 NH2 delta negative, delta positive. So this hydrogen and this nitrogen, they will have a intermolecular hydrogen bond. So amines have the capability of formation of hydrogen bond. So इनमें जो intermolecular forces हैं, these are number one, strong hydrogen bond forces, and secondly, due to this carbon chain, they will have the van der Waal force. So अगर क्वेश्चन आए कि amines में कौन सी forces है, then you will tell there are two forces. Number one, van der Waal forces. Number two, hydrogen bond forces, and the magnitude of hydrogen bond forces is more than van der Waal forces. Secondly, student, be remember in the organic compound, the van der Waal forces exist. It will exist in all the organic compound because this is basically due to the carbon chain. Clear? Differentiating force कौन सी जो particularly उसी compound में है, वो है आपकी hydrogen bond force. Clear? So this we have discussed the first, that is the intermolecular force. Now the second is we have to study about the boiling point. So number one, बॉइलिंग पॉइंट. सो बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग थोड़ा स्टडी करते हैं कि अगर एक ऑर्डर करें हाइड्रोकार्बन, देन अल्काइल हैलाइड, देन अमीन्स, देन alcohols, and then carboxylic acids. So this is the order of increasing boiling points that you have to remember. Carboxylic acid को यही नोट करते हैं, carboxylic acids. This is the order now. अब हमें रीजन स्टडी करना है. रीजन आई विल डिस्कस, जस्ट सी आउट व्हाट इज द रीजन. अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन में क्या है, वी आर हैविंग वैन डर वाल फोर्सेस. अगर आप अल्काइल हैलाइड की बात करो तो अल्काइल हैलाइड में देयर इज अ कार्बन हैलोजन बॉन्ड, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव. दिस इज अ डाइपोल. सो अल्काइल हैलाइड दे विल हैव वैन डर वाल फोर्स प्लस डाइपोल फोर्स. नाउ अमीन्स में हमने भी स्टडी किया दैट देयर इज van der Waal force plus dipole plus hydrogen bond force, that you have to remember. अब alcohols की बात की जाए तो alcohols में भी we are having a van der Waal force plus हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स. अगर आप एग्जांपल लेके चले, दिस इज CH3 CH2OH, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव. क्लियर? सो दिस OH ग्रुप इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड ड्यू टू दिस कार्बन चेन देयर इज अ वैन डर वाल फोर्स. क्लियर? अगर आप चाहो तो जस्ट सी आउट द एग्जांपल, CH3 CH2OH, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड. तो अल्कोहल में भी क्या है, देयर इज अ हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स
प्लस वॉन डर वाल फोर्स। अगर बात की जाए कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है बेटा, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव। सो ऑल दीज आइडेंटिटीज, दीज आर कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। इवन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में आप स्टडी करो CH3COOH, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी साइड्स ज़्यादा है। अगर आप अमीन में स्टडी करो तो सिर्फ NH बॉन्ड से आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है, अल्कोहल में OH बॉन्ड से बन सकता है। यहाँ पर OH बॉन्ड एंड दिस ऑक्सीजन, दे बोथ हैव द कैपेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड। सो हम ये कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ज़्यादा होगा। बट एज फार एज फोर्स इज कंसर्न, सो हियर आल्सो आई विल राइट van der Waals force plus हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स। नाउ लिसन स्टूडेंट्स, अब जो आज हमारा लेक्चर है वो अमीन के रिगार्डिंग है, तो हम खाली अमीन को फोकस करेंगे। तो अमीन्स में जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, that is more than hydrocarbon and alkyl halide. First point, boiling point is more than hydrocarbons and alkyl halides of comparable मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं डिस्कस करूं कि ये आपका मीथेन है, दिस इज मिथाइल क्लोराइड एंड दिस इज CH3NH2, ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको बॉइलिंग पॉइंट किसका मिलेगा, यू विल गेट दिस मिथाइल अमीन, देन मिथाइल क्लोराइड, देन मीथेन। क्लियर, तो फर्स्ट पॉइंट ये आपने स्टडी किया। सेकेंड इसी में, नाउ द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन corresponding alcohols and carboxylic acid। अगर बात की जाए बेटा अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड, सो उससे बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। अमीन्स में NH बॉन्ड है, अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों में OH बॉन्ड है, एंड वी नो दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन नाइट्रोजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ड्यू टू विच OH बॉन्ड इज मोर पोलर देन NH बॉन्ड। आई कैन से NH बॉन्ड की जो पोलैरिटी है वो कम होगी। अगर पोलैरिटी ज्यादा है देन दिस OH बॉन्ड विल फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एज कंपेयर टू NH बॉन्ड, NH बॉन्ड विल फॉर्म अ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। किसके कंपैरिजन में, OH के कंपैरिजन में। सो यहाँ पे रीजन में क्या लिखूंगा, दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन नाइट्रोजन, देयरफॉर OH फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड देन NH बॉन्ड। NH से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड वो फॉर्म करेगा, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दैट यू हैव टू रिमेंबर। अगर मैं इसमें आपसे एग्जांपल स्टडी करूं कि वी विल डिस्कस एग्जांपल, जस्ट सी आउट CH3NH2 और आई विल राइट CH3CH2NH2 CH3CH2OH, ठीक है, दिस इज इथाइलमीन, इथाइल अल्कोहल। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज मोर देन दैट पर्टिकुलर इथाइलमीन, और इससे भी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आपका एसिटिक एसिड। क्लियर। अब एसिड में क्या रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। एसिड में क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होता है। अल्कोहल तो खाली OH से बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो आपका जो हाइड्रोजन बॉन्ड अभी भी मैंने डिस्कस किया था
सी डबल बॉन्ड O से भी बनेगा और OH से भी बनेगा। तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है, ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा देन ऑब्वियसली जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज होंगी वो स्ट्रांग होंगी, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कंप्लीटली कि जो आपका अमीन्स है इनका बॉइलिंग पॉइंट मोर देन हाइड्रोकार्बन एंड अल्काइल हैलाइड्स, whereas less than alcohol and carboxylic acid of comparable molecular mass. Clear? Now after that we have to discuss the boiling point in isomeric amines. Just see out. Boiling points in isomeric amines. Now in isomeric amines हमें boiling point को स्टडी करना है. So see how to understand isomeric amines में if I will take CH3 CH2 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 NH2, this is N ब्यूटाइल अमीन और ब्यूटेन अमीन और प्राइमरी अमीन, जो भी आप कहें डजंट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है, तो मेन यहाँ पे देखिए जो कार्बन चेन है वो 4 कार्बन की. अब मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन, एक CH3 ग्रुप अपर साइड पे लगाया, CH2 NH2. दिस इज नाउ, ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये, और एक ऐड होकर हो जाएगा आइसोब्यूटाइल अमीन. यहाँ तक आइसोप्रोपाइल, ठीक है, एक कार्बन और है तो आइसोब्यूटाइल अमीन. ठीक है ना. अब इसमें देखिए बेटा, देयर इज अ चेन ऑफ 3 कार्बन एटम्स. कितने की चेन है, 3 कार्बन एटम्स की आपकी पर्टिकुलरली चेन है, दैट यू हैव टू रिमेंबर नाउ. क्लियर. अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं यहाँ पर कि अब इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड NH2 बनाएगा, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड NH2 बनाएगा. मींस जो हाइड्रोजन बॉन्ड का मैग्नीट्यूड है वो आपका सेम है, बट हियर द वान डर वाल फोर्स इज ड्यू टू 4 कार्बन एटम. हियर द वान डर वाल फोर्स इज ड्यू टू 3 कार्बन एटम, दैट यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है ना. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. तो वान डर वाल फोर्स का मैग्नीट्यूड यहां पे क्या होगा, कम. हियर देयर इज लेस मैग्नीट्यूड ऑफ वान डर वाल फोर्स, हियर इट इज मोर मैग्नीट्यूड ऑफ वान डर वाल फोर्स. So the boiling point of this N-butylamine is more than isobutylamine. Clear to all of you? Next beta, we have to study the comparison between the primary, secondary and tertiary amines. Just see out. We have to study between the primary, secondary and tertiary amine में comparison करना है. Primary amine, secondary amine and tertiary amine में we have to compare. So primary amine, if I will take CH3 CH2 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 NH2, this is primary amine. Okay. Secondary amine CH3 CH2 NH CH2 CH3, this is the secondary amine. Now tertiary amine CH3 CH2N CH3 and CH3. Now all these amines, this is a primary amine, secondary amine और बेटा ये tertiary amine. जब आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन में कंपेयर करना हो, देन यू हैव टू सी कि जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन है, ठीक है ना, वो हमें स्टडी करना है. तो यहां पर प्राइमरी अमीन में क्या है, दिस इज NH, देयर आर 2 NH बॉन्ड. सेकेंडरी अमीन में देयर इज 1 NH बॉन्ड. टर्शियरी अमीन में देयर इज नो NH बॉन्ड.
सो टर्शरी अमीन डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, जबकि सेकेंडरी में इट फॉर्म्स वन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकेंड प्राइमरी अमीन इट फॉर्म्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, मोर विल बी द इंटर molecular forces, same primary, secondary and tertiary, and same will be the, and you can say more will be the boiling point. So boiling point primary, then secondary, then tertiary. So this is the order of boiling point. सबसे ज़्यादा primary, then secondary, then tertiary. This we have explained on the basis of मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो आइसोमेरिक अमीन में दो चीज़ें आपको देखनी है। मैंने आपको वान डर वाल फोर्स भी बताया कि सबसे पहले तो आप देखिए, अगर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन है तो डायरेक्टली आप देखेंगे कि ऑर्डर रहेगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, क्योंकि जैसे जैसे नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन कम होंगे, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का जो नंबर है, एक मैग्नीट्यूड है, कम हो जाएगा। बट अगर आपके NH बॉन्ड सेम है, जैसे अगर दो ही प्राइमरी अमीन को कंपेयर करना हो, देन यू हैव टू सी वान डर वाल फोर्स किसमें ज़्यादा है। तो जिसमें वान डर वाल फोर्स ज़्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और वान डर वाल फोर्स हमने कैसे देखनी है? बाय सीइंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द मेन चेन। सो दिस वी हैव कंप्लीटेड द स्टूडेंट, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमीन्स। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट प्रॉपर्टी दैट वी विल डिस्कस इज solubility of amines. Just see the students. Last property is solubility of amines. So इसको हमें पॉइंट्स में स्टडी करना होगा। सो फर्स्ट पॉइंट जो हम स्टडी करेंगे, दैट दिस अमीन्स आर soluble in water. वाटर में soluble है। रीजन, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड with water. If I'll give you the example, just see out. CH3 NH2, delta positive, the positive, delta negative. Water HOH, delta positive, delta negative. This is intermolecular hydrogen bond. Point 1 is clear to all of you. Second, the solubility decreases with increase in carbon atoms or with increase in alkyl group or increase in carbon chain, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो इसको कैसे स्टडी करेंगे, जस्ट सी आउट। एज अगर हम सिंपल कंपेयर करें, देखिए, आई हैव टेकन CH3 CH2 NH2 एंड आई विल टेक CH3 CH2 CH2 NH2। अब ये दो बेटा मैंने लिए हैं, तो इसमें बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ ये 2 कार्बन की चेन है, यहाँ ये 3 कार्बन की चेन है। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है 2 कार्बन का, ये 3 अल्काइल ग्रुप का। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे, दे विल क्रिएट स्टेरिक हिंड्रेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसको भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है, इसको भी वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड, HOH, this is same here, HOH, this is। now अब जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होंगे, ठीक है, देन ड्यू टू इंक्रीज इन कार्बन एटम्स दे क्रिएट स्टेरिक हिंड्रेंस इन फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड में दे विल क्रिएट द स्टेरिक हिंड्रेंस। क्लियर? अब जब स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा, देयरफॉर द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी बिकॉज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस द चांसेस
ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर डिक्रीजेस। सो अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो जो सॉल्युबिलिटी है वो किसकी ज़्यादा होगी, दैट इज इथाइलामीन इज मोर सॉल्युबल देन प्रोपाइलामीन। तो ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, कभी भी वाटर की सॉल्युबिलिटी का डिस्कशन हो तो जितने ज़्यादा आप कार्बन चेन में कार्बन एटम इंक्रीज करोगे दे विल क्रिएट हिंड्रेंस। हिंड्रेंस मीन्स इनका साइज बहुत बड़ा होगा, ड्यू टू बल्कि साइज ये वाटर यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। सो द चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीजेस एंड वी कैन से द सॉल्युबिलिटी आल्सो डिक्रीजेस। क्लियर? So this we have discussed, that is the solubility increases with solubility decreases with increase in the carbon chain. Now number 3, जो आपके aromatic amines हैं, these are insoluble in water. Very important now. एरोमेटिक अमीन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अगर बात की जाए किसी भी एरोमेटिक अमीन की ये एनिलीन को लेके चले, सो दिस एनिलीन इनसॉल्युबल इन वाटर, रीजन बिल्कुल क्लियर है। दिस बल्कि हाइड्रोकार्बन पार्ट, बल्कि हाइड्रोकार्बन पार्ट और यू कैन से बल्कि रिंग, ये क्या करेगी, द बल्कि रिंग रिटार्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। देखो बेटा, जब हम डिस्कस कर रहे थे नॉर्मली कि जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगा, बट जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड है उनमें ये जो आपकी रिंग है, दैट पर्टिकुलरली बेंजीन रिंग की बात करें या कोई भी रिंग की हम बात करें, तो ये रिंग इतना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करती है ड्यू टू विच जो रिटार्डेशन हमें मिलती है टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कि यहाँ पर तो क्या था कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की टेंडेंसी धीरे धीरे कम होगी, बट यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा बिकॉज दिस रिंग रिटार्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, हेंस दीज आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी बेंजीन रिंग आएगी उसका स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज़्यादा होगा, साइज इतना बड़ा होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन ही नहीं पाएगा, दैट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर? नाउ वन मोर पॉइंट वी हैव टू स्टडी, पॉइंट नंबर 4, जस्ट सी आउट, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अगर वाटर में सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर के रिगार्डिंग स्टडी किया जाए तो अमीन्स से ज़्यादा सॉल्युबल यू कैन गेट एल्कोहल्स, और एल्कोहल से ज़्यादा सॉल्युबल कार्बोक्सिलिक एसिड्स। क्लियर? ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ऑफ, आई विल राइट हियर, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए, जो अमीन्स है यहाँ पे NH बॉन्ड है, एल्कोहल में भी OH बॉन्ड है और कार्बोक्सिलिक एसिड में CO और OH बॉन्ड। तो सबसे पहले बात की जाए कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आई विल राइट हियर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन नाइट्रोजन। तो ये जो NH बॉन्ड है इट इज लेस पोलर, ठीक है, एंड दिस OH एंड OH बॉन्ड इज मोर पोलर। तो अगर पोलैरिटी की बात की जाए तो ये ज्यादा पोलर है ड्यू टू विच दे फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, हेंस आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो बात की जाए कि भी अमीन से ज़्यादा सॉल्युबल एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों होते हैं, इसका रीज़न आपको मिल गया, क्योंकि वहाँ पर मोर पोलर OH बॉन्ड है ड्यू टू विच जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्लियर? तो अगर आपसे कहा जाए कि अरेंज इन द, या अरेंजमेंट को बाद में करेंगे, अभी खाली हमने अमीन्स और एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड को स्टडी किया है, अब हम स्टडी करेंगे कि एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो 2 एडिनिटी से बनेगा,
OH से भी बनेगा और CO से भी बनेगा, यानी पर्टिकुलरली ये ऑक्सीजन भी टेक पार्ट करेगा और ये OH भी टेक पार्ट करेगा। तो अगर बात की जाए, अब हम कंपेयर करें, दैट इज कंपैरिजन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। Alcohol and carboxylic acid, then carboxylic acid are more soluble in water. Reason, because they form more magnitude, or you can say more number of hydrogen bond than alcohols। तो अल्कोहल से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर इसमें क्वेश्चन दिया जाए आपको कि इंक्रीज करो इन द, अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जस्ट सी आउट द स्टूडेंट वेरी केयरफुली। सो एक मैंने आपको दिया CH3 CH2 NH2 इथाइलमीन, एक मैंने दिया CH3 CH2OH इथेनॉल, और एक CH3 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आपका ऑर्डर होगा। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इथाइलमीन से ज़्यादा सॉल्युबल इथाइल अल्कोहल, उससे ज़्यादा सॉल्युबल आपका एसिटिक एसिड। तो सॉल्युबिलिटी में एक बार फिर से देखेंगे कि अमीन से ज़्यादा सॉल्युबल अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों होते हैं? दे विल हैव द मोर पोलर OH बॉन्ड, ड्यू टू विच दे फॉर्म मोर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब बात इन दोनों के कंपैरिजन की आएगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है, यानी क्वांटिटी कह लीजिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द मॉलिक्यूल आर मोर as compared to alcohol, therefore the solubility of carboxylic acid is more than alcohol. So student, this is all about the topic, that is the physical properties, जिसमें हमने स्टडी किया आज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बॉइलिंग पॉइंट एंड solubility. So that's all about the topic.